मैम आप स्टार्ट कर दो. Okay. Good afternoon, everyone. Today is our financial accounting lecture 10, and as per the timetable, today is our last class. Before starting today particular topic, I'm going to discuss what are the portion we discussed from our syllabus in the last 9 classes. So first see that, then we will start the remaining portion. Because again and again students are asking the same question in the chat box, what are the syllabus, yes the question aayega nahi aayega. Again I am telling you each and everything. This is your syllabus is classified into 5 units: theoretical framework, basics of accounting, business income, accounting for property plant, AS10, inventory management, accounting from incomplete record, accounting for non-profit organization. We cover all these parts. We already discussed this part in the introduction first 3 classes. Then we discuss final account for non-profit organization. Then after that we discuss business income, AS10 introduction part, and then inventory valuation method of LIFO, FIFO, simple average and weighted average. And then we discuss branch accounting, and then we discuss accounting for incomplete record, or you can say single entry system. I told you this is the book in which you will get your whole syllabus, GR Moga. I think एक slide से visible नहीं हो रही है. यूनिट 4 में आपका ब्रांच अकाउंटिंग है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है एंड लीज है, और यूनिट 5 में बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अपडेटेड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर में ग्रुपिंग कैसे करते हैं, टैली का कैसे यूज होता है. यू हैव ऑल दीज थिंग्स इन यूनिट 5. कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, हायर परचेज, ये जो टॉपिक्स हैं ये पुराने वाले सिलेबस में थे. अभी जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर में अभी इनरोल किया है उनके लिए वो सिलेबस में टॉपिक नहीं है. आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई हो. GR मोगा में यू विल गेट योर ऑल सिलेबस रिलेटेड टू योर फर्स्ट सेम फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ओके, so we already discussed lots of important things. I told you if you are going to do numerical, focus on cash book, because अभी बेसिक में से आने की पॉसिबिलिटी भी है. जॉइंट वेंचर, हायर परचेज और पर्टिकुलर कंसाइनमेंट वाले चैप्टर नहीं है, तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम द बेसिक. कैश बुक आप कर सकते हैं, बेसिक कैश बुक में न्यूमेरिकल पे फोकस करिए. देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो मेथड्स हैं, LIFO last in first out, FIFO first in first out, simple average method, and then after that weighted average method. ये आप बाकी बहुत सारे मेथड्स मैंने आपको जो प्रेजेंटेशन जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, देयर आर लोट्स ऑफ मेथड्स, बट एटलीस्ट डू द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दीज 4 मेथड्स. देन इन्वेंटरी मैनेजमेंट मीन्स व्हाट आर द वेज टू मिनिमाइज योर inventory cost, because if you are holding inventory you are bearing some carrying cost and holding cost. So there are the criteria to decide the optimum amount of units in the inventory so that you are able to minimize your inventory cost. तो उसके लिए there are lots of ways. तो ये theoretical part है because we have allotted only 10 classes, so I left this part for you. आपको इसको करना है. If you will find any difficulty you can ask me. Then in final account for non-profit organization, I told you will do the whole numerical including adjustment, जिसमें हमने क्या किया था, you have given receipt and payment account, and on the basis of that you will prepare income and expenditure account, and then after that balance sheet. For preparing closing balance sheet, first you will prepare opening balance sheet. Okay, then after that I told you sometime you will get the question when you have given balance sheet and income and expenditure and some additional or adjustment information. On the basis of that you will prepare receipt and payment account. I am repeating, एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंशन हो और उसके बेसिस पे
आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट रेडी करनी हो फॉर अ एनपीओ. And it may be possible in exam you will get the question in which income and expenditure and balance sheet is given, and on the basis of that you will prepare receipt and payment account. तो ये दो variety आपको at least इसमें करनी है. And carefully read some doubted items in NPO like legacy, subscription, स्टेशनरी कंज्यूम, स्पोर्ट्स आइटम्स कंज्यूम. तो उसके लिए मैंने आपको नोट्स दिया है और आपको बताया था कि किस तरह से आपको टेक केयर करना है. बिकॉज आई टोल्ड यू इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली कंसिडर द थिंग्स विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर or the year for which you are going to prepare income and expenditure account. But in receipt and payment, you include everything or the way in which you are getting cash or the way by which the cash is outflow from the organization. You will consider each and everything in receipt and payment account, whether it is related to current year, पास्ट ईयर और फ्यूचर ईयर. तो आपको इसमें क्या करना है, सारी चीजें कंसिडर करनी है. बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर यू वांट टू गेट द आइडिया रिगार्डिंग द करंट ईयर डेफिसिट और सरप्लस. दैट्स व्हाई कंसिडर ओनली द करंट ईयर डेटा. देन इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो कि हमने लास्ट क्लास में ही स्टार्ट किया था, आपको मैंने बताया था देयर आर टू मेथड, नेट वर्थ मेथड एंड कन्वर्जन मेथड. इन नेट वर्थ मेथड वी प्रिपेयर opening statement of affair to find out opening capital and closing statement of affair to find out closing capital, and on the basis of that we will prepare statement of profit and loss to find out the profit of the company. Then I told you there is the conversion method in which first we convert single entry system to the double entry system, and then we prepare trading profit and loss in final account. आज की क्लास में कन्वर्जन का हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. Beside this, in branch accounting in module 4 there are 3 topics as I told you, or in unit you can say module 4 or unit 4. You have branch accounting, you have departmental accounting, you have lease accounting. लीज का बेसिक है, बहुत ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है. See dear, I told you branch accounting is a very important topic. That's why I consume 2 classes, 2.5 classes in discussion of branch accounting. See dear, branch accounting में I told you you will do the theory part of the various varieties of the branch: inland branch, foreign branch, dependent branch, independent branch. But numerical point of view, you will do only 3 methods. One is debtor system. In case of debtor system, you only prepare one account, that is branch account. आप क्या करते हो, हेड ऑफिस की बुक में ओनली प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट, और उसी में जो भी ब्रांच से रिलेटेड होती हैं एक्टिविटीज उनको मेंशन करते हो. सपोज दिल्ली में ब्रांच है, दिल्ली ब्रांच अकाउंट, मुंबई में ब्रांच है, मुंबई ब्रांच अकाउंट, और उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शंस को आप एक ही प्लेस पे ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. बाकी जो कैलकुलेशन है उसको रफली वर्किंग नोट में आप कैलकुलेट करते हैं एंड पुट द वैल्यू ऑन द मेन ब्रांच अकाउंट. एंड देन द सेकेंड मेथड इज स्टॉक एंड डेटर सिस्टम. स्टॉक एंड debtor system. See, in case of stock and debtor system, you prepare all the account like stock account, debtor account, creditor account. जो भी आपकी चीजें होती है उनको आप प्रिपेयर करते हैं. गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, एंड देन आफ्टर दैट एडजस्टमेंट अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. You prepare the account for separate transaction, but I told you it is necessary to draw 5 account in the main calculation. Rest you will prepare in the working note. यानी कि आपको सबसे पहले एक स्टॉक अकाउंट, एक डेटर अकाउंट, एक एडजस्टमेंट अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट और कैश अकाउंट, ये रेडी करना कंपलसरी होता है. बाकी को आप प्लस माइनस करके रफली कैलकुलेट कर सकते हैं. ये 2 मेथड मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. हमारे पास टाइम नहीं था तो थर्ड मेथड हमने डिस्कस नहीं किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट मेथड. तो एक बार इसको भी आप देख लेंगे. और अगर मैं इनमें प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड कौन है, सबसे फर्स्ट रैंकिंग है इंपॉर्टेंट की बेस पे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम. देन इससे लेस इंपॉर्टेंट है फाइनल अकाउंट और कम इंपॉर्टेंट है डेटर सिस्टम.
अगर कोई इजी पेपर बनाता है तो वो डेटर सिस्टम का क्वेश्चन पिक करेगा, टफ पेपर बनाएगा तो वो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम या फिर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पिक करेगा। यूनिट 5 जो है वो प्योरली थ्योरेटिकल यूनिट है, उसमें सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन आपको उसमें से नहीं करना है। क्लियर? एंड एज आई टोल्ड यू, you will get your all syllabus in GR Muga. DU के लिए GR Muga is the best book. यहाँ पे आपको सारे आपका सिलेबस गेट हो जाएगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड विद सफिशिएंट प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब बच्चों का क्वेश्चन एक ये भी होता है, क्या हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो इनफ रहेगा? डियर, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में स्टडी मटेरियल आपके लिए इनफ नहीं रहेगा, आपको बुक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल में वो इनफ है बट न्यूमेरिकल के लिए वो इनफ नहीं है, तो आपको बुक परचेज करनी पड़ेगी। परचेज GR Muga एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। आपका सिलेबस काफी कम हो गया, सेमेस्टर 1 में जो बुक में मेंशन है 5 की 5 यूनिट वो आपके एग्जाम में आ रही है। आई होप आप किसी को इस कनेक्शन में डाउट नहीं होगा। मल्टीपल टाइम हर क्लास में ये बात मैंने रिपीट की है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस आवर टुडे क्लास टॉपिक। टुडे इज आवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर 10 और जिसका हमारा टारगेट था conversion method. I told you in case of single entry system, first we record the data according to the single entry system, but tax authority will not accept or not trust the data collected on the basis of the single entry system. For that purpose or for getting accurate result of your business, you have to find out the accurate data of that particular business. For that particular purpose, you convert single entry system data to double entry system data. For that, in yesterday class, I told you various steps. See dear, I told you all these steps means by using the data from the single entry system, you convert each and everything and find out the missing value like opening stock, closing stock, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, जो भी मिसिंग फिगर है आपके पास उसको यूज करके आप सारी कैलकुलेशन करेंगे। ये आपको न्यूमेरिकल से समझ आ जाएगा, डिटेल में मैं आपको स्टेप बता चुकी हूँ। एंड एज आई टोल्ड यू कि व्हाइल यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल स्टेप 5, स्टेप 6 एंड स्टेप 7 is not important. You only focus 1 to 4 and last step 8. Now see what are the missing figures in case of conversion of single entry to double entry. When you are going to prepare the debtor account, then there may be credit sale, opening debtor, closing debtor or cash collected from debtor, the missing figure. इन चारों में से कोई भी एक मिस होगा और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। When you are going creditor account, then there may be credit purchase, opening debtor, creditors, closing creditors and cash paid to creditors may be the missing figure. तो इनमें से कोई भी एक मिस होगा, आप अकाउंट प्रिपेयर करके you will find out the missing figure. Then after that you will prepare memorandum trading account. In case of memorandum, why this is called memorandum trading account? Because we are preparing this trading account by converting single entry system to double entry system. तो कई बार क्या होता है कि given information की हेल्प से you are able to find out the gross profit, और आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक जो भी मिसिंग होता है उसको फाइंड आउट करेंगे, so that you are able to complete double entry system. अगर आपके क्वेश्चन में बिल्स रिसेबल का डेटा अवेलेबल है तो ओपनिंग बिल्स रिसेबल, क्लोजिंग बिल्स रिसेबल, बिल्स रिसेबल रिसीव्ड और बिल्स रिसेबल कलेक्टेड, इनमें से कोई भी मिसिंग वैल्यू हो सकती है। देन आफ्टर दैट अगर बिल्स पेबल इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग बिल्स पेबल, बिल पेबल इशूड, बिल पेबल ओनर्ड, इन चारों में से कोई भी एक मिसिंग वैल्यू हो सकती है। विद द हेल्प ऑफ दैट मिसिंग वैल्यू यू विल कंप्लीट द फाइनल अकाउंट। देन जो आपके पास कैश और बैंक अकाउंट होगा, समटाइम क्वेश्चन में एज आई टोल्ड यू सिंगल एंट्री सिस्टम की 3 टाइप्स होती है। एक होता है प्योर सिंगल एंट्री, एक होता है सिंपल सिंगल एंट्री और एक होता है क्वासी सिंगल एंट्री। प्योर सिंपल एंट्री में एज आई टोल्ड यू यस्टरडे सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, बट सिंपल सिंगल एंट्री में यू मेंटेन कैश बुक अलोंग विद द पर्सनल अकाउंट। तो समटाइम आपको कैश बुक भी गिवन हो सकती है और कैश बुक की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट ओपनिंग कैश अकाउंट, क्लोजिंग कैश अकाउंट, कैश सेल्स, कैश परचेज, ड्रॉइंग्स, सन्ड्री इनकम
एज पर द सिचुएशन इनमें से कोई भी आपका बैलेंसिंग फिगर हो सकता है जिसको आप फाइनल अकाउंट में यानी कि आगे बैलेंस शीट को कंप्लीट करने में यूटिलाइज करेंगे. देन आफ्टर दैट नाउ कम एट द क्वेश्चंस. क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और जूम कर रही हूँ सो दैट यू कैन इजिली रीड द क्वेश्चन. See, first read the question. I hope सबको क्वेश्चन विजिबल हो रहा हो. You have given the following information: total debtors, opening closing, total creditors opening closing, stock opening closing, plant and machinery only opening, furniture only opening. Then you have given cash book, you have given receipt, various source of receipt, and you have given various source of payment. And then you have given some additional information related to that particular things. So वेट ए मिनट, एक बार मैं डिस्प्ले दोबारा से कर रही हूँ, स्क्रीन हैंग हो रही. एक बार आप चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. आई होप सबको स्क्रीन विजिबल हो रही हो प्रॉपरली. एनीबॉडी? क्वेश्चन एंड आंसर में एक बार कमेंट करके बता दीजिए आपको प्रॉपरली स्क्रीन विजिबल हो रही है. Now you have given some additional information along with the main information. In the additional information you have given debt debts, write off during the year 1500, discount allowed. Discount allowed कहाँ पे किया जाएगा? क्रेडिट सेल पे. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड. जब आप पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, और जब सेल्स का पेमेंट आप रिसीव करोगे देन यू विल अलाउड डिस्काउंट. तो डिस्काउंट अलाउड कंपनी के लिए क्या है? डिस्काउंट अलाउड इज expenses for company and discount received is income for company. Depreciation on machinery is to be 10% on the value of machinery on 31st December 2022. Furniture to be depreciated at the rate of 5%. Interest at the rate of 6% is to be allowed on capital. Now you have to prepare final account on the basis of this particular information. So after using this information, first prepare opening statement of affair, debtor account, creditor account, trading account, balance sheet. आप सारी चीजें प्रिपेयर करोगे so that you will get all the missing value. First I am going to prepare opening statement of affair to know the opening capital because I have all the balances of opening capital. See dear, when you are preparing opening statement of affair, first put the opening data of asset and liability. Debtors, opening debtor 19,300, opening creditor 9,800, opening stock 11,600, plant and machinery 30,000, furniture 1,500, and then you have cash book also. The opening balance of cash book means balance brought down comes in opening statement of affair, or you can say statement of affair as on 1st January 2002. तो हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 5,000. उसको हम किसमें पोस्ट कर देंगे? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. और जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट रेडी करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप कैश बुक का कौन सा बैलेंस शो करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस मींस बैलेंस कैरिड आउट. तो आपने क्या किया? जो भी आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस थे, कैश के, एसेट्स के, लायबिलिटी के, सबको पोस्ट कर दिया. एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई ऐसा ओपनिंग बैलेंस का हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है. देन आफ्टर दैट कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर. आवर टोटल ऑफ एसेट साइड इज 66,400. डिडक्ट liability side total 66,400 minus 9,800. The balance
is 57,600. This is the balancing figure as well as our opening capital. तो सबसे पहले जब आप सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट कर रहे हो और आपके पास अगर सारे के सारे ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, इफ यू हैव ऑल दी ओपनिंग बैलेंस, अगर आपके पास कुछ वैल्यू मिसिंग है तो पहले आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तब आप स्टेटमेंट ऑफ फेयर को बना सकते हो। बट हमारे क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस है, तो हमने सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर प्रिपेयर की टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। देन आफ्टर दैट आप क्या प्रिपेयर करेंगे, डेटर। अब आप देखिए डेटर का कौन सा मिसिंग फिगर है, आपको मैंने लिस्ट दी है कि आपका ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर और क्रेडिट सेल, इनमें से कोई भी मिसिंग वैल्यू हो सकती है। तो एज पर इंफॉर्मेशन हम इसको प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमारी मिसिंग वैल्यू क्या आती है। तो आपके पास ओपनिंग डेटर गिवन है 19,300, क्लोजिंग 20,500, इसको अकाउंट में पोस्ट करोगे। ओपनिंग डेटर, डेटर्स एसेट है, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,300, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 20,500। क्लियर। इसके बाद आपको बताया था डेबिट में सिर्फ क्रेडिट सेल आती है और क्रेडिट में कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, बैड डेब्ट, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट, वो सारी चीजें कहाँ आती है, क्रेडिट में। तो अपने क्वेश्चन में देखिए कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब आपको गिवन है इसमें रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, आपकी ये कैश बुक है और कैश बुक में एक आइटम है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, इसका मतलब क्या है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। कहाँ आता है, डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड, पोस्ट कर देंगे आप। देन आफ्टर दैट यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन गिवन है, यानी कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, कैश बुक गिवन है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट क्या करनी है, रेडी करनी है। क्लियर है? आई होप किसी को इस कंसर्न में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आपने क्या किया, सारे आइटम को आप पोस्ट कर रहे हो, आपने देखा एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैड डेब्ट्स भी गिवन है और बैड डेब्ट्स कहाँ पे आएगा, डेटर अकाउंट में, किस साइड, क्रेडिट साइड, बाय बैड डेब्ट्स। देन आफ्टर दैट यू हैव गिवन डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड ₹2,000, डिस्काउंट अलाउड। आपको मैंने बताया डिस्काउंट अलाउड कब होगा, जब आप सेल करेंगे और जब आप क्रेडिट परचेज करते हो या कैश भी परचेज करते हो और आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, यानी कि आपको कम पेमेंट करनी पड़ी है, तो आपके लिए इनकम है। तो अगर हम बात करते हैं डेटर अकाउंट, तो डेटर अकाउंट रेडी करते समय हमें क्या लिखना है, डिस्काउंट अलाउड या फिर डेबिट बैलेंस ऑफ डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा, या तो डिस्काउंट अलाउड होना चाहिए या डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस होना चाहिए। क्लियर। और बाय डिफॉल्ट समटाइम क्या है कि क्वेश्चन में सिर्फ डिस्काउंट वर्ड लिखा हुआ है, उसके साथ मेंशन नहीं है अलाउड और रिसीव्ड। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी एक्सपेंसेस के नाम हैं, अगर उसमें कुछ मेंशन नहीं होता तो उनको एक्सपेंसेस की तरह ही आप एक नोट राइट करके यू विल ट्रीट इट एज अ एक्सपेंसेस। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, डिस्काउंट पोस्ट कर दिया। बाकी आप सारी इंफॉर्मेशन चेक करोगे, आपके पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है डेटा से रिलेटेड, क्योंकि सेल्स रिटर्न है कहीं भी नहीं है, सारा हमने डेटा रीड किया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, इसको सम अप कर दिया। हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया 1,02,000, डेबिट साइड का अपना टोटल है 19,300। 1,02,000 में से 19,300 लेस करोगे, बैलेंसिंग फिगर आपको गेट होगी 82,700। अब डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आई है, आई टोल्ड यू ओपनिंग बैलेंस के अलावा डेबिट साइड में क्या क्या चीजें होती है, एक होता है क्रेडिट सेल और एक होता है बिल डिसऑनर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्योंकि अभी हम सिंपल सिनेरियो की बात करें, बिल्स की यहाँ पे पूरे डेटा में कहीं भी बात नहीं की गई है, तो अब इस बैलेंसिंग फिगर को क्या शो करोगे, क्रेडिट सेल। और वैसे भी मैंने आपको नोट में स्टार्टिंग में बता दिया कि अगर आप डेटर अकाउंट बता रहे हो सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री कन्वर्जन में, तो आपकी जो मिसिंग फिगर होगी या तो वो ओपनिंग डेटर हो सकता है या क्लोजिंग हो सकता है या कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर हो सकता है या क्रेडिट सेल। इन चारों के अलावा इसमें आपकी कोई भी मिसिंग फिगर नहीं होगी व्हेन यू आर अडॉप्टिंग कन्वर्जन मेथड फ्रॉम सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री। तो यहाँ पे हमारी मिसिंग फिगर क्या आ गई, क्रेडिट सेल आ गई। तो क्रेडिट सेल आ गई 82,700। अब इसे कहाँ यूटिलाइज करोगे, ये यूटिलाइज कहाँ पे होगी, क्रेडिट सेल यूटिलाइज होगी कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। जब ट्रेडिंग अकाउंट में आप सेल मेंशन करोगे तो उसमें इस फिगर को आप यूज करोगे। क्लियर है ये चीज।
देन जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे वहां पे बेड डेप्स यूज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ये डिस्काउंट एज एक्सपेंसेस कहाँ यूज करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये भी आपके माइंड में क्लियर कट रहना चाहिए। आपको समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आपको पोस्ट करते समय इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट बनते हैं तो कई बार हम लोग क्रॉस शिफ्टिंग करना भूल जाते हैं। देन आफ्टर दैट वी प्रिपेयर क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर का आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी के बैलेंसेस कहां से शुरू होते हैं, क्रेडिट साइड से। जैसे डेटर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में था और क्लोजिंग क्रेडिट में था, जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस का होगा डेबिट में। तो आपका लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या राइट करोगे आप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9800। कैरी डाउन बैलेंस कितना है 8100, आपने पोस्ट कर दिया 8100। उसके अलावा जैसे डेटर होता है उसी तरह से क्रेडिटर होता है, सिर्फ क्रॉस शिफ्ट हो जाता है। जब आप क्रेडिटर अकाउंट बनाते हो तो क्रेडिटर अकाउंट में, क्योंकि आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो उस कनेक्शन में आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहां पे हमारे पास क्या रहता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में, बिसाइड दिस बाय क्रेडिट परचेज एंड बीपी डिसओनर। थर्ड आइटम क्या होगा, बीपी डिसओनर। डिसओनर जब तक आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, यू विल नॉट कंसीडर दिस आइटम। डेबिट में आपके पास क्या होगा, कैश अकाउंट में कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश या बैंक जिस भी थ्रू आपने पेमेंट की है, बैंक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट, कैश और बैंक पेमेंट टू क्रेडिटर। देन आफ्टर दैट कोई डिस्काउंट आपको रिसीव्ड हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड यू विल मेंशन हियर। देन आफ्टर दैट परचेज रिटर्न, ओके, एंड देन बैलेंस कैरिड डाउन। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको पुट कर रहे हैं सेम क्रेडिटर के फॉर्मेट में। हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग था, आपने मेंशन कर दिया। अब आपको देखना है इस डेटा में कहीं कैश परचेज क्रेडिट परचेज कुछ गिवन है, एक आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड गिवन है। परचेज जब आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ पे आएगा, क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड 600। देन आफ्टर दैट आपको अगर कोई क्रेडिटर से कैश आपने पे किया है तो उसको कंसीडर करोगे, तो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है बाय सन्ड्री क्रेडिटर 31,000। बाय सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब क्या है, कैश बुक में आपको सन्ड्री क्रेडिटर गिवन है, इट मींस दिस इज द पेमेंट टू क्रेडिटर, और जो पेमेंट क्रेडिटर को मेड की जाएगी यू विल शो दैट पर्टिकुलर पेमेंट ऑन डेबिट साइड। यू विल राइट टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट कहां पे पोस्ट कर दोगे, 31,000 डेबिट साइड। आपके पास 31 आ गया, आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है, आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। अब हमारे पास क्या बच जाता है मिसिंग फिगर, आपको बताया था 4 ही मिसिंग फिगर हो सकती हैं, कैश पेड टू क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और क्रेडिट परचेज। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आइटम आ गया। बैलेंसिंग फिगर को क्या लिख देंगे हम, क्रेडिट परचेज। एंड हाउ टू कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर, डेबिट साइड का आप टोटल करेंगे, ये आपका आ रहा है 39,700। 39,700 में से आप क्या करेंगे, 9,800 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 9,800 आप इसमें से माइनस करेंगे, यू विल गेट 29,900, और ये क्या हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, जिसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे जब आप मेंशन करते हैं परचेज किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वहां पे ये क्रेडिट परचेज को आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट कहां पे यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है, इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस के कहां पोस्ट करोगे, क्रेडिट साइड। तो बनाते हुए थोड़ा सा छोटा छोटा जो आपको आइटम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में यूज करने हैं उनको एक डॉट लगा देना, सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट टू पोस्ट एनी आइटम। आई होप आप सबको डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर करना आ गया। डेटर अकाउंट तो हमने मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल चैप्टर्स में डिस्कस किया है, ब्रांच में भी हमने डेटर सिस्टम में, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में किया है। क्रेडिटर अकाउंट हम यहीं पे कर रहे हैं और सेम ही चीज है, आपको बताया बस सिर्फ क्रॉस हो जाएगा, वो सेल के कनेक्शन में था, ये परचेज के, इसलिए से बैलेंसेस चेंज हो गए हैं। वहां पे जो डेबिट में था वैसी चीजें यहाँ पे क्रेडिट में है, जो वहां पे क्रेडिट में थी यहाँ पे क्या है, डेबिट में।
Otherwise, अगर आपको normally समझ नहीं आता, you can see the format and then memorize the format of the debtor account and creditor account. Understanding बेस पे करोगे तो कुछ भी ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में या कुछ भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है लैंग्वेज में तो आपका एरर नहीं होगा. Is this clear? Then after that, next account is trading profit and loss account. See dear, यहाँ पे हमारे पास bills payable नहीं है, bills receivable नहीं है. That's why we are not going to prepare all those accounts. We have debtor balance, we have creditor balance, and for finding out opening capital, we prepare opening statement of affair. As I told you, in case of net worth method, we prepare opening statement of affair for finding out opening capital and closing statement of affair for finding out closing capital. But here we are going to prepare trading profit and loss account and balance sheet. That's why we are not going to calculate closing capital. Closing capital automatically calculated while we are posting all the data in the balance sheet. तो अब आपको देखना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि फाइनल अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है उसमें अपने अवेलेबल डेटा को पुट करना है. आपके क्वेश्चन में आपको गिवन है ओपनिंग स्टॉक 11,600. दिस इज 11,600. 11,600 परचेज हमने अभी निकाली थी. परचेज अभी हमने क्रेडिटर से निकाली है. कितनी परचेज आई अपनी 29,900. पोस्टेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट. परचेज इज 29,900. वेजेस गिवन इन द कैश बुक. ध्यान से क्वेश्चन देखिए. इसमें पे आउट में गिवन है कैश बुक में क्रेडिट साइड में पेमेंट गिवन है 15,000. ये वेजेस है. इस वेजेस को आप ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट कर दोगे. वेजेस क्योंकि एम्प्लॉय वेजेस कैरीज इनवर्ड ये सब कहाँ आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम में. क्लियर. देन क्रेडिट साइड में सेल्स आपने डेटर अकाउंट से सेल्स निकाली थी. इन डेटर अकाउंट क्रेडिट सेल इज 82,700 और यहाँ पे आपको कैश सेल्स भी गिवन है. डेटा को केयरफुली स्टडी करना है. इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैश सेल्स गिवन है तो टोटल सेल्स कितनी हो गई कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स मींस 15,000 प्लस 82,700. इसको आप क्या कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट कर देंगे. क्रेडिट सेल 82,700 कैश सेल 15,000 दोनों को ऐड करेंगे 97,700. ये आपकी आ गई सेल्स. देन आफ्टर दैट क्लोजिंग बैलेंस आपको ऑलरेडी गिवन है. बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,300. टोटल करेंगे 97,700 प्लस 12,300. आपका जो टोटल है वो आ जाएगा 1,10,000. 1,10,000 में से डेबिट साइड का टोटल आप लेस करोगे यू विल गेट 53,500 एज अ ग्रॉस प्रॉफिट. आई होप आप सबको इतना क्लियर हो गया. अगर अभी तक जितना बताया है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, अगर किसी का डाउट है यू कैन राइट इन द क्वेश्चन आंसर एंड काइंडली राइट द रिलेवेंट क्वेश्चन. एग्जाम कब स्टार्ट होगा, ये कब होगा, वो कब होगा. डोंट राइट दिस काइंड ऑफ कमेंट. बिकॉज ऑफ दीज कमेंट्स आई ऑलवेज स्किप द इंपॉर्टेंट कमेंट्स. कैलकुलेटर बेटा अलाउड होता है एग्जाम में. मल्टीपल टाइम्स आई रिपीट द सेम थिंग. न्यूमेरिकल अब कौन से टॉपिक से आएंगे बेटा जी. स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो आपकी न्यूमेरिकल एक फिक्स टॉपिक कुछ नहीं होता है. बट स्टिल आई टोल्ड यू लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर चैप्टर्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हो फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू और उसमें से भी कौन कौन से पर्टिकुलर वेज ऑफ कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है. अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें से अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. देन आई विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. Dear, now we are going to prepare profit and loss account. See, for calculating profit and loss, first cross shift the gross profit figure. The gross profit is 53,500. Shift it on the credit side, and then after that all the item related to profit and loss. So
See the data carefully. You have discount allowed, discount received, bad debts, depreciation, interest on capital. You have all these data for finding out the net profit. So put all these data and also carefully study the cash book. In cash book, you have sale of old machinery and sale of old packing boxes. Sale of old machinery. See dear, sale of old machinery is capital nature receipt. That's why we are not considering it as an item of profit and loss. इसको आप profit and loss में transfer नहीं करोगे. But sale of old packages, packing boxes is considered as a income in profit and loss. इसको profit and loss को income side यानी कि credit side आप क्या करोगे? Post करोगे. सैलरी एक्सपेंसेस है, सैलरी को आप कहां पोस्ट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. मशीनरी एसेट है, ये बैलेंस शीट में शिफ्ट होगी. इन्वेस्टमेंट ऑल्सो शिफ्ट इन बैलेंस शीट. ड्रॉइंग्स ऑल्सो शिफ्ट इन बैलेंस शीट. जनरल एक्सपेंसेस शिफ्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश शिफ्ट इन बैलेंस शीट एसेट साइड. क्लियर? And along with this, you will consider all the adjustment. Now I am going to put all these data in the profit and loss format. Sale of old packing boxes value is 600. Discount received, as I told you, this is the income for the business, 600. And then after that, salary, you have given 12,000. General expenses, 17,000. Then discount allowed, 2,000. Each and everything given in the data of the question. Bad debts 1500, it is given in the adjustment. Now come at the calculation of the depreciation. See dear, when we are doing calculation of depreciation, then there are the two ways of treating by default purchase. Sometime if the date of purchase of any fixed asset is not given, then we always calculate the depreciation on the closing balance. And if there is information regarding the purchase of the asset, then we will treat accordingly. If the date is given, then we only calculate the depreciation for the period of holding that particular fixed asset during the relevant financial year. So in our particular question, only given purchase of machinery and sale of machinery. As you can notice, we have given opening balance of machinery 30,000. Then after that, sale of old machinery 40,000, and then cash book credit side machinery 10,000. This credit side value represent purchase of machinery, and debit side value shows sale of machinery. To first find out the closing value of machinery to find out the depreciation, because date of purchase is not mentioned. So what you will do in working note, you will do the calculation. Opening balance of machinery, you have given 30,000. 30,000. Then after that, plus purchase. Purchase is 10,000. The value is 40,000. Then you have given sales value. You are not aware about the profit and loss of the sale, but you are aware about the sale proceed you are getting after selling a old machinery, 4,000. So you assume this is the cost price of the particular sold machinery in the absence of the information. The balance of machinery is 36,000. As I told you, this is the conversion of single entry to double entry. That's why we can assume various things. Now the available balance of machinery is 36,000. This is the balance after considering purchase of machinery and sales of machinery. Now calculate depreciation on this value. You have given depreciation on machinery is 10%. It is clearly given in the question. So 10% of 36,000 is 3,600. Clear? Then in question you have given depreciation on furniture 5%. See dear, you have given furniture opening balance 1,500 and no information available
in the cash book regarding furniture. So we calculate depreciation on this balance. Depreciation on furniture is 5% on 1500. 5% of 1500 is 75. Then after that you have given interest on capital. Interest on capital is expenses for company and interest on drawing is income for company. So you have given interest on capital, so posted on the expenses side. Interest on capital is always calculated on opening capital if nothing is mentioned in the question. If you have not given anything regarding additional capital, drawings and all that, always calculate interest on capital on the opening balance. We don't have anything regarding that. We have only one thing, that is drawings name in the particular cash book. That's why we treat it as a drawings in the balance sheet. Here we will not consider it. So interest on capital is calculated on opening balance. ओपनिंग बैलेंस हमने कहां कैलकुलेट किया था? वी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. जो हमने सबसे पहले अकाउंट बनाया था ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का, इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट वी कैलकुलेट अ बैलेंसिंग फिगर 57,600 एज अ ओपनिंग कैपिटल. तो 57,600 पे आप क्या कैलकुलेट करेंगे? 6%, बिकॉज 6% इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो our interest on capital is 57,600. ये आपको समझ आ गया कहां से आया? ये हम कहां से लेके आए हैं ओपनिंग कैपिटल? ये हम लेके आए हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से. 57,600 का 6%. 57,600 का 6% आप निकालेंगे, कैलकुलेटर अलाउड है. You will get 3456 means 3,456. Now चेक द होल डेटा कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसको हमने मेंशन ना किया हो. सी डेटर से जो हमें क्रेडिट सेल चाहिए थी वो हमने ले ली, क्रेडिटर से हमें क्रेडिट परचेज चाहिए थी वो हमने कंज्यूम कर ली. स्टॉक से रिलेटेड चीजें हमने देख ली कि ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में चला गया. क्लोजिंग कहाँ चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको हम शिफ्ट कर देंगे. प्रॉफिट एंड लॉस के आफ्टर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें जो हम स्टॉक शिफ्ट करेंगे वो कितना होगा? 12,300. देन आफ्टर दैट फर्नीचर को हम कैलकुलेट करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन. सिमिलरली मशीनरी में भी आप परचेज, सेल्स और डेप्रिसिएशन को कंसीडर करते हुए क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे एंड देन यू विल पुट द वैल्यू इन द बैलेंस शीट. Is this clear to all of you? And then opening balance, opening statement of affair में आ गया है, इसको हम यूज कर चुके हैं. कैश सेल यूज हो गया है. मशीनरी की कैलकुलेशन में यूज होगी. तो एक बार क्लोज करने से पहले क्वेश्चन को सारे डेटा को आपको चेक करना है कि कौन सा आइटम ऐसा है जो पोस्ट नहीं हुआ है. अभी आप जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे उसमें परचेज को कंसीडर करेंगे. बाय इन्वेस्टमेंट आपको जो कैश बुक में गिवन है ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप पोस्ट करेंगे. ड्राइंग्स को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जब आप एडजस्टमेंट करेंगे प्रॉफिट की, कैपिटल की, उसमें कंसीडर करेंगे. एज यू नो फाइनल अकाउंट सबने पढ़ा हुआ है कि क्या फॉर्मेट होता है? कैपिटल प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस है तो माइनस, और ड्राइंग्स क्या होता है? माइनस. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस interest on drawing minus. General expenses we already posted in the profit and loss account. Closing balance as I told you कहाँ पे आएगा? Closing balance sheet में आएगा. इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं. डेटर्स का ट्रीटमेंट डेटर्स के साथ देखेंगे. अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है इट मीन्स ऑलरेडी ये आपका बेड डेब्ट्स ट्रीट हो चुका है. तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यू हैव गिवन ओपनिंग बैलेंस 19,300, क्लोजिंग बैलेंस 20,500. तो आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, इट मींस ऑल दी थिंग्स एडजस्टेड इन दिस बैलेंस. अगर आपको डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं होता तो आप फिर बेड डेब्ट्स के लिए उसमें एडजस्टमेंट करते, बट यू हैव गिवन क्लोजिंग बैलेंस. तो आपको क्या करना है? उसको आपको एडजस्ट नहीं करना है, आपको एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस को यूज करना है. ये बेटा जी वो सिली एरर है जो कि बच्चे एग्जाम में कंटेक्ट करते हैं. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिंपल वर्ड्स में ध्यान रखिए. अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है डेटर या किसी चीज का तो उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो आपको एज्यूम करना है कि वो एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है.
अभी बेटा थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो गया था। आई होप मेरी स्क्रीन वापस आप सबको विजिबल हो गई हो। एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। ऑल ऑफ यू एबल टू व्यू माय स्क्रीन? नेटवर्क अभी फ्लक्चुएट हुआ था थोड़ा सा, तो डिस्प्ले आपका चला गया होगा। एक बार आप क्वेश्चन आंसर बॉक्स में राइट करके कंफर्म कर दीजिए, आर यू एबल टू व्यू माय स्क्रीन? आई होप मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल हो रही हो। थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएट होता जिसकी वजह से डिस्प्ले चला गया था। सी डियर, तो आपने सारे आइटम इसमें डिफाइन कर दिए। देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग आइटम है उसको बैलेंस शीट में क्या कर देना है, पोस्ट कर देना है। बैलेंस शीट में आपको क्या यूज करना है, क्रेडिटर्स यूज करना है। कौन सा बैलेंस यूज करना है, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है आपको सन्ड्री क्रेडिटर। देन आफ्टर दैट आपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से कैपिटल कैलकुलेट की थी उसको आप पुट करेंगे 57,600। देन एट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,456। एड प्रॉफिट, जो कि हमने किससे कैलकुलेट किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर से। सारा डेटा पुट करने के बाद हमारी डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आई है तो उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड में अगर हमारी बैलेंसिंग फिगर आती है तो उसे क्या बोलते हैं, नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट है तो उसे आप क्या करोगे, ऐड करोगे, और अगर नेट लॉस है तो उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो हमारे पास नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देन आफ्टर दैट डिडक्ट ड्रॉइंग्स, आपने नेट प्रॉफिट में से ड्रॉइंग्स को लेस किया। ये भी आपको बैलेंस कैश बुक में गिवन है 6,000, आपने लेस किया, यू विल गेट 70,125 मीन 70,125। तो अब हमारे पास लायबिलिटी साइड में टू आइटम्स हैं, वन है सन्ड्री क्रेडिटर एंड अदर इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ कैपिटल। तो जो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है वो यहाँ पे हमने अलग से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर रेडी नहीं की है, बैलेंस शीट में ही सारे डेटा को कंसीडर करके क्या कर दिया है, कैलकुलेट कर दिया है। क्लियर? देन आफ्टर दैट ऑल द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, कैश का, कैश बुक में जो आपको बैलेंस कैरी डाउन गिवन है 5,600 वो हमने मेंशन कर दिया। डेटर अकाउंट का जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है वो हमने मेंशन कर दिया। देन आफ्टर दैट स्टॉक का आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस है, सारा का सारा डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसको हमने क्या करा, पुट कर दिया। इन्वेस्टमेंट एज आई टोल्ड यू किसमें गिवन है, कैश बुक में, क्रेडिट साइड में गिवन थी, आपने उसको एसेट साइड में पोस्ट कर दिया। फर्नीचर वैल्यू आपको कैश बुक में गिवन थी, गिवन क्वेश्चन में 1,500, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। द वैल्यू यू विल गॉट इज 1,425। देन आफ्टर दैट प्लांट एंड मशीनरी का ऑलरेडी वर्किंग नोट में हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, उसी वैल्यू को आप क्या कर दोगे, इसमें पुट कर दोगे। बैलेंस ऑन 1/2022 यानी कि ओपन बैलेंस मशीनरी का, परचेज 10,000 किया, 40 हो गया, सेल्स कर दिया 4,000 का 36, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 3,600, बैलेंस अमाउंट कितनी आ गई, 32,400। क्लियर? सारा डेटा जो भी हमारे पास अवेलेबल था सिंगल एंट्री सिस्टम का, हमने कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर किए और उसको डबल एंट्री में कन्वर्ट कर दिया। एंड नाउ आप लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल करेंगे, यू विल गेट द सेम वैल्यू। अगर सेम वैल्यू नहीं आ रही, इट मीन्स आपने कोई ना कोई आइटम स्किप किया है,
while posting the data from the given information. क्लियर है? तो आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई है, इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री। आपको आज की जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें ओनली रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, बेटा डोंट आस्क एग्जाम कब होंगे, ये कब होगा, लाइब्रेरी कब ओपन होगी, डोंट आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, ओनली राइट द रेलेवेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द टुडे डिस्कशन। क्लियर? तो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले यही क्लियर किया कि कितना सिलेबस हम कवर कर चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी रेफरेंस बुक आपको यूज करनी है। आई ऑलरेडी क्लियर ऑल दीज थिंग्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर डाउट्स। Kindly post your doubt in question answer session. नोट्स बेटा ग्रुप में मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है वो उसमें सेंड किए हुए हैं। आफ्टर एंडिंग टुडे क्लास में फिर से सेंड कर दूंगी। कुछ बच्चे कल भी ऐड हुए हैं उस ग्रुप में, अदरवाइज मैंने उसकी सेटिंग कर दी है कि आप प्रीवियस चैट भी देख सकते हैं। वो मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया, वो सेटिंग चेंज कर दी है ग्रुप की। कैलकुलेटर अलाउड होगा एग्जाम में, वो मैं बार बार हर क्लास में आपको बताती हूँ। क्वेश्चन मैं आपको जो भी क्लास के क्वेश्चन है प्रीवियस सारी पीपीटी में आपको शेयर कर चुकी हूँ, आज की क्लास का भी शेयर कर दूंगी। सिंगल एंट्री सिस्टम का जो है ट्रेडिंग अकाउंट में, बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या लिखते हो, जो फाइनल अकाउंट आपने पढ़ा है, सारे के सारे बच्चे मैक्सिमम कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपने फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी स्टडी किया होगा 11th स्टैंडर्ड में, जिसमें आपने क्या सीखा, आपने सीखा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम सारे एक्सपेंडिचर मेंशन करते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं उनको ट्रेडिंग में लिखते हैं, जो हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। तो आपको वो फॉर्मेट को फॉलो करना है और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी सबको ट्रेडिंग में पुट कर देना है। अगर हम अपने गिवन क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास इसमें स्प्रेडिंग डेटा था तो हमने उसे सम अप किया। हमने क्रेडिटर की हेल्प से क्रेडिट परचेज फाइंड आउट की, डेटर अकाउंट की हेल्प से क्रेडिट सेल फाइंड आउट की, और कैश परचेज और कैश सेल कहां से देखना है आपको, कैश बुक से। तो वहां से हमने देखा क्रेडिट परचेज कितनी है, कैश परचेज कितनी है, क्रेडिट सेल कितनी है, कैश सेल्स कितनी है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने सिर्फ फॉर्मेट में पुट की है और उसके बैलेंसिंग फिगर से क्या निकाला है, जीपी। बेटा दोनों मेथड ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप नहीं कर सकते। जो चीजें मैंने जितनी क्लास में डिस्कस की हैं वो सारी चीजें वही डिस्कस की हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो अब दो में से भी एक मेथड को आप छोड़ नहीं सकते हो। इट इज डू टू न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बोथ दी मेथड्स। हाँ जी डियर, जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आती है उसके अपोजिट में अगर कैरिड डाउन आपका क्रेडिट में आया है, कई बार क्या होता है कि बुक्स में जो डेटा पुट होता है कई बार वो बुक्स में कई बार प्रिंटिंग एरर होता है। हमेशा एक ही फंडा फॉलो करना है। अगर क्रेडिट डाउन बैलेंस आपको क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में दिया है तो उसको शिफ्ट करोगे डेबिट में। अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आया है तो उसको आप शिफ्ट करोगे क्रेडिट साइड में। हमेशा अपोजिट शिफ्टिंग ही होती है। हाँ जी डियर, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो 11th क्लास वाला ही चलेगा। एंड इवन दो अभी रिसेंटली आपने पास आउट किया है तो आपने जो फाइनल अकाउंट स्टडी किया होगा वो आपने स्टडी किया होगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013। मैं आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का ओल्ड और न्यू दोनों फॉर्मेट सेंड कर दूंगी, बट आपको सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री के कन्वर्जन में ओल्ड वाला फॉर्मेट ही यूज करना है जो कंपनीज एक्ट 1956 वाला था। देखिए मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो फाइनेंशियल कंपनी है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, उस सिचुएशन में वो अभी भी ओल्ड फॉर्मेट ही यूज कर रही है
और अगर हम सिंगल एंट्री की बात करें तो मैंने आपको बताया जहाँ पे सिंगल ओनर है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिर्फ वही कंपनियां, वही फर्म्स, वही छोटे छोटे बिजनेस सिंगल एंट्री सिस्टम यूज कर रहे हैं। बाकी सारी कंपनीज क्या यूज कर रही है? डबल एंट्री सिस्टम। तो ये कन्वर्जन की बात किस सिचुएशन में आएगी? सोल प्रोप्राइटरशिप के बेस में आएगी, क्योंकि जो मॉडर्न सिनेरियो में बाकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑलरेडी अपडेटेड एज पर कंपनीज एक्ट 2013 यूज कर रही है, तो वहां पे कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। तो आपको ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वाला ओल्ड फॉर्मेट यूज करना है। आई विल शेयर द फॉर्मेट विद यू, सो डोंट वरी अबाउट इट। बेटा अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट गिवन होगा तो दोनों की आइटम्स को प्लस करके आपको कैलकुलेट करना होगा। यानी कि सपोज आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट गिवन है और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग गिवन है, तो दोनों को कंबाइन करके करंट ईयर में कितना रिसिप्ट हुआ है। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक्चुअल इनफ्लो ऑफ कैश और एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ कैश, एक्चुअल इनफ्लो इन बैंक और एक्चुअल आउटफ्लो इन बैंक, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। क्लियर है? तो आपको दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके, जैसे अभी देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास सिंपल इंफॉर्मेशन थी और कैश बुक थी, तो हमने इसको यूज करके क्या बनाया? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यूजुअली फाइनल अकाउंट आप किससे प्रिपेयर करते हो? यूजुअली आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो ट्राई बैलेंस से, बट हमारे कन्वर्जन के क्वेश्चन में हमने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया है कैश बुक और सम इंफॉर्मेशन से, यानी कि सम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस से। तो इसी तरह से अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट गिवन है तो दोनों के बैलेंसेस को एड ऑन करके आपको ये देखना है कि करंट ईयर में कितना कैश का इनफ्लो हुआ है, क्योंकि वहां से आप क्या करोगे? जो ड्यू ट्रांजेक्शन है उनको रिमूव कर दोगे, क्योंकि ड्यू का मतलब है एक्चुअल में अभी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने देखना है कितना एक्चुअली इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट को इस चीज से मतलब नहीं है कि ये इनफ्लो प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का है या फ्यूचर ईयर का है, तो वो आपको डेटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी होगी। बेटा फोन से कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं? एग्जाम में फोन थोड़ी अलाउड होता है। वेजेस वाला मैं आपको बता देती हूँ दोबारा। सीडियर आपको कैश बुक में गिवन है वेजेस 15,000, आपको कैश बुक की क्रेडिट साइड में गिवन है, इसका मतलब क्या है? पेड वेजेस। और वेजेस किसका पार्ट होता है एज पर फॉर्मेट? ट्रेडिंग अकाउंट का। तो बस यहां से उठा के हमने क्या किया है? वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। वेजेस हमें गिवन है 15,000, हमने लिखा टू वेजेस और अमाउंट पोस्ट कर दी 15,000। बैलेंसिंग बेटा जब टाइपिंग करते हैं, केवल टाइपिंग या प्रिंटिंग एरर होते हैं, डोंट बोदर अबाउट इट। जो बैलेंसिंग फिगर है उसको आप बैलेंस कैरेट डाउन लिखोगे, ठीक है, और शिफ्टिंग क्रॉस शिफ्टिंग करनी है। नोट्स मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो हमने बनाया है उसमें मैंने सारे के सारे जितना भी क्लासेस में डिस्कस किया है सबकी पीपीटी उसमें शेयर कर दी है। आपकी वेबसाइट पे जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है वो भी मैंने सारा उस ग्रुप में शेयर कर दिया है। बेटा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी कम आती है, न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। नोट्स बेटा आपको बताया जेआर मोगा से आप पढ़िए, उसमें आपके जो पर्टिकुलर सिलेबस में टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को आपको पढ़ना है, वही नोट्स है, वो सब कुछ करना है। अभी स्पेसिफिक कॉलेज में कोई स्टैटिक नोट्स नहीं होते कि दो चार चीजें रट के आप चले जाओगे और एग्जाम हो जाएगा। स्टिल हमने जो क्लास में डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप पहली प्रायोरिटी उनको दे सकते हैं। वो सारा डेटा मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। हाँ जी बेटा, प्लांट एंड मशीनरी का वर्किंग नोट में लिख के फाइनल लिख सकते हो पूरा वैल्यू,
और या फिर सारी कैलकुलेशन भी शो कर सकते हो। नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज माइनस सेल्स माइनस डेप्रिसिएशन। टेलीग्राम पे पीपीटी ऑलरेडी शेयर की हुई है, अच्छी क्लास की एंड करने के बाद भी शाम तक मैं बाकी फिर से जो बच्चे नए ऐड हुए हैं फिर से रीसेंड कर दूंगी डेटा। बेटा डेबिट या क्रेडिट इक्वल ना आए तो आपको बताया है ना कि अकाउंट में आपको डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आएंगे। थ्योरेटिकल डिस्कशन में सबसे पहले ये बताया कि जब आप सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं तो किस अकाउंट से कौन सी बैलेंसिंग फिगर आ सकती है जिसको आप यूटिलाइज करोगे। तो आप ये देखिए, अगर डेटर अकाउंट बना रहे हैं तो मैंने आपको मेंशन किया ये बैलेंसिंग फिगर, अगर डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आएगी तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर बचेगी। हर एक सिचुएशन में आपको बताइए कौन सी बैलेंसिंग फिगर बच रही है। उसके अलावा अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग में बचती है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में बच रही है तो वो क्या होगा, आपका नेट प्रॉफिट होगा। अगर क्रेडिट साइड बच रही है तो वो नेट लॉस होगा एज पर सिचुएशन। और बैलेंस शीट मैच नहीं करी इट मीन्स आपने कोई ना कोई पोस्टिंग में डेटा स्किप कर दिया है, कोई ना कोई आइटम आपने पोस्ट नहीं किए है। बेटा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सारे अकाउंट क्यों नहीं बना पाओगे आप? प्रैक्टिस करोगे तो आपको वही लिमिटेड टाइम में सारे क्वेश्चन करने। एक क्वेश्चन की वेटेज भी तो अच्छी खासी होती है, आपको ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी करने होते, एग्जाम में 5 क्वेश्चन करने होते हैं। एनपीओ 12th के लेवल का ही है, एनपीओ में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें कन्वर्जन मेथड आप लोग स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ते हो तो उसमें एडवांस है। एनपीओ का 12th वाली जो भी आपकी स्कूल लेवल की बुक है उसमें से भी आप कर सकते हो, उससे ज्यादा टफ लेवल कोई इसमें ऐड नहीं है। हाँ बेटा 9th एंड 10th लेक्चर भी टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। टेलीग्राम लिंक मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लास्ट 3-4 क्लासेस से मैं शेयर कर रही हूँ। आई थिंक कुछ स्टूडेंट सिर्फ 1 या 2 ही क्लास अटेंड करने आते हैं। बेटा जी एडवांटेज तभी गेट होगा, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, अगर आपने कंटिन्यू क्लास नहीं लेते हो आप तो क्लास लेने का तो कोई एडवांटेज गेट ही नहीं होगा। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल। के डाउट सारे सेटिस्फाई हो गए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। If anybody have any question, you can ask. Best of luck all of you.
लिंक, एक मिनट बेटा मैं लिंक शेयर कर देती हूँ।